رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ناظرین، رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یہ رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے الحمدللہ روزانہ آپ عصر کی نماز کے بعد اور افطار کے وقت تک الحمدللہ دیکھتے ہیں۔ اس میں دعائیں بھی ہوتی ہیں، علماء کرام ثنا خوان مصطفیٰ نعت شریف بھی پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں نعت خواں اقرا عبدالرشید۔ اقرا، السلام علیکم، آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ۔ محفل کا آغاز، اس بزم کا آغاز کرم رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کلام ربانی کی تلاوت سے ہوا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ آمین آمین۔ اب سنتے ہیں نعت شریف کا نذرانہ۔ ملتمس ہوں کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ملتمس ہوں اقرا محمد عبدالرشید سے کہ وہ آپ نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مدینے میں ایسی فضا لگ رہی ہے، مدینے میں ایسی فضا لگ رہی ہے کہ جنت کی جیسے ہوا لگ رہی ہے، کہ جنت کی جیسے ہوا لگ رہی ہے۔ مدینے میں بارش ہے اب رے کرم کی، مدینے میں بارش ہے اب رے کرم کی، میرے مصطفیٰ کی ادا لگ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کی ادا لگ رہی ہے۔ مدینے میں مت نہ دکھ تھا نہ غم تھا، مدینے میں مت نہ دکھ تھا نہ غم تھا، یہاں زندگی کیوں سزا لگ رہی ہے، یہاں زندگی کیوں سزا لگ رہی ہے، مدینے میں ایسی فضا لگ رہی ہے کہ جنت کے جیسے ہوا لگ رہی ہے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ رمضان 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 رمضان۔ جی ماشاءاللہ۔ بسمہ عبد المجید، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں،
اسماء عبد المجید آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. رمضان 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 رمضان. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشی راجپوت. آپ سے گزارش کروں گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. جی شکریہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا. دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، ہے جلوۂ جانانا. دل میں تجھے رکھ لوں. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ. دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا. دل میں تجھے رکھ لوں. جی چاہتا ہے تحفے میں سبحان اللہ. بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ. دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا. بے خود کیے دیتے ہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ناظرین وقت ہوا ہے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں کرم رمضان. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس
जंहिंमें अव्हीं पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बरवक़्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहाइशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स दिलकश एलिवेशन कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स स्टैंड बाय जनरेटर कवर्ड पार्किंग चिल्ड्रन प्ले एरिया जिम्नेजियम प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां। हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym, Wonderful swimming pool, spacious and comfortable rooms, great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सदा करना मेरे बस में थी, मैंने तो सदा कर दी। सदा करना मेरे बस में थी, मैंने तो सदा
خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ محمد مصطفیٰ جانے۔ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا احمد، بھلا جانے برا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ رمضان 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 رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کر میں رمضان آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے، اور آج 23 رمضان کریم ہے، پتہ بھی نہیں چلا 22 رمضان ایسے گزر گئے، لوگ اعتکاف بھی لوگوں نے کیا ہوگا اور ماشاءاللہ اپنے رب کو راضی بھی کر رہے ہوں گے، عبادات بھی کر رہے ہوں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا بہت پیارے مہمان، ہمارے حیدرآباد نیوز کا یہ الحمدللہ پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی حصہ رہے، اور جب بھی الحمدللہ کبھی کوئی ہمیں مسئلہ درپیش آتا ہے تو حضرت سے رجوع فرماتے ہیں، حضرت ماشاءاللہ اس کا سوال ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور ہمارے ادارے کے بھی میرا جو ادارہ ہے اس کے بھی الحمدللہ یہ سرپرست اعلیٰ ہیں۔ میری مراد آپ کا میں تعارف کرا دوں، ہمارے درمیان موجود ہے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ غاری فیاض الحسن چشتی صاحب، آپ ہیں سربراہ تحریک اوصاف القرآن اور اوصاف القرآن پبلک ماڈل اسکول کے آپ سربراہ ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے۔ آج 23 رمضان کریم ہے، آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا ہے، اللہ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب چلتے ہیں سوالوں کی طرف جو ہمارے ویورز کے آئے ہوئے ہیں سوال۔ تو آج کا موضوع میں نے اعتکاف رکھا تھا، تو اعتکاف کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا علامہ صاحب پہلا سوال کہ اعتکاف کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا معنی ہے دھرنا دینا، اور دھرنا کب دیا جاتا ہے، کہاں پر دیا جاتا ہے، کیوں دیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عموماً سماجی تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں اپنے مطالبات منوانے کے لیے کسی چوک کو منتخب کرتی ہیں، کسی شاہراہ کو منتخب کرتی ہیں اپنے مطالبات منوانے کے لیے حکومت وقت سے۔ جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں ہوتے وہ اس وقت تک دھرنا دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دھرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرو خرو کرنے کے لیے دھرنا دیتا ہے، سبحان اللہ، کیا بات، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے،
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وہ عبادات کرے، نوافل پڑھے، قرآن پاک پڑھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بے شک، صحیح، بے شک، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب بہت پیارا اپنے اعتکاف کا معنی ہمیں عطا فرمایا۔ علامہ صاحب دوسرا سوال یہ کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ بھلے کوئی واقعہ، کوئی اس طرح تفصیلی فضیلت عطا فرما دیں۔ ہاں، اعتکاف کی فضیلت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے لیے کی، جب دونوں خانہ کعبہ کو تعمیر کر چکے تھے، فارغ ہو چکے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا وَعَهِدْنَا، اور ہم نے وعدہ کیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل، ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہر بیتی للطائفین، کہ تم دونوں میرے گھر کو صاف کرو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین والرکع السجود، اور وہاں پر جو لوگ عبادت کریں، رکوع و سجود کریں، ان کے لیے آپ میرے گھر کو صاف ستھرا کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف ستھرا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کے مہمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دھرنا دینے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھنا چاہ رہے ہیں، ان کو وہاں پر صاف ستھرا ماحول ملے، خوبصورت ماحول ملے، اچھی جگہ ملے، اور ان کے لیے صفائی ستھرائی کا انتظام ہونا چاہیے۔ پھر صاف ستھری جگہ جہاں پر ہوتی ہے، وہاں پر جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، تو نوافل پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جتنی صاف ستھری جگہ ہوتی ہے وہاں اتنا ان کو مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود نے حکم فرمایا ہے کہ جب اعتکاف کرنے کے لیے بندہ جائے تو وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زندگی میں کم و بیش صرف 1 سال اعتکاف نہیں کیا، لیکن دوسرے سال پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 20 روزہ اعتکاف کیا۔ 20 روزہ اعتکاف کا یعنی اعتکاف جو ہے 10 روزہ اعتکاف ہے، آخری عشرے کا اعتکاف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، میں نے نہیں پایا، پھر میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کو پانے کے لیے، میں نے شب قدر کو نہیں پایا، پھر میں نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو میں نے شب قدر کو اس میں پا لیا۔ تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور پھر اس اعتکاف کو جاری رکھا، اور امہات المومنین نے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اعتکاف فرمایا، اور اس اعتکاف کو انہوں نے جاری رکھا۔ اچھا علامہ صاحب، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف کہاں پر ہوتا ہے؟ ہاں، بڑا اچھا سوال ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اعتکاف مسجد کے اندر ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے گھر کو صاف ستھرا کرو۔ مرد حضرات اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی کریں، اور مسجد میں 2 جگہیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جائے مسجد اور ایک ہوتی ہے فنائے مسجد۔ اچھا، اس کا مطلب بتائیں، جائے مسجد اور فنائے مسجد؟ ہاں، جائے مسجد وہ ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، جس جگہ پر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے وہ ہے جائے مسجد، اور دوسری ہے فنائے مسجد۔ فنائے مسجد وہ ہوتی ہے جیسے وضو خانہ ہے، استنجا خانہ ہے، سیڑھیاں ہیں اور دیگر جگہ، وہ فنائے مسجد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جائے مسجد میں بندہ نماز بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے،
तिलावत भी करे, इबादत करे, तस्बीहात पढ़े। फ़नाए मस्जिद में बग़ैर किसी वजह के नहीं जाना चाहिए। सही है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी, कोई ज़रूरी काम था फ़नाए मस्जिद में, जैसे वज़ू करने के लिए जाना है, संजा खाने के लिए जाना है, तो वहाँ जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी काम अगर हो तो फिर जाएं। इसके अलावा वैसे नहीं जाना चाहिए, हमेशा जाए मस्जिद में ही रहना चाहिए। ठीक है। बाकी रहा सिलसिला ये कि उस के अंदर कुछ लोग जो है वो जगह मखसूस करते हैं जहाँ पर इतिकाफ़ करते हैं, डिब्बे बना लेते हैं, कपड़े लगा लेते हैं, पर्दा लगा लेते हैं। ये एक अच्छा अमल है, हमारे बुज़ुर्गों का यही अमल है। अच्छा, अब मौजूदा दौर में क्या होता है कि तरबियती इतिकाफ़ होता है। तरबियती इतिकाफ़ में क्या होता है कि पर्दे नहीं लगाते और जो अकेले इतिकाफ़ कर रहे होते हैं वो पर्दा लगा लेते हैं। तो पर्दा लगाने का मकसद ये होता है कि बंदा पर्दे के अंदर बैठकर अल्लाह को राज़ी करे, अल्लाह की इबादत करे, और बाहर से आने वाले को पता हो कि ये इतिकाफ़ वाला है, उसके पास वो न जाए। सही। एक जगह मुकर्रर होगी, एक जगह ख़ास होगी। ठीक है। तो अब जो जगह उसने मुकर्रर की है, उस जगह के अंदर उसने क्या करना है, अल्लाह की इबादत करनी है, कुरान पाक भी पढ़ना है, नवाफिल भी अदा करने हैं, तस्बीहात भी पढ़नी है। और अगर ऐसा है जहाँ पर तरबियती इतिकाफ़ है, वहाँ पर अगर पर्दे नहीं लगे हुए तो कोई हर्ज नहीं है। तरबियती इतिकाफ़ की जगह पर, जो मस्जिद की जगह है, वहाँ पर बंदा रह सकता है। तरबियत मसलन कोई इमाम मस्जिद है, वो घंटा 2 घंटा उनकी तरबियत करता है, 8-10 लड़के 15-20 लोग जो है इतिकाफ़ कर रहे हैं। अब इमाम साहब जो है ना बैठकर उनकी तरबियत कर रहे हैं, उनको कभी कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, तर्जमा सिखा रहे हैं, तिलावत सिखा रहे हैं और दीगर मामलात उनको सिखा रहे हैं, नमाज अच्छे तरीके से पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, वो एक तरबियती इतिकाफ़ होता है। अगर तरबियती इतिकाफ़ में पर्दे नहीं लगाए तो इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो तरबियती इतिकाफ़ में बग़ैर पर्दों के भी हो सकता है। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, वक्त हुआ वक्फ़े का, मिलते हैं वक्फ़े के बाद। देखते रहें कई करम है रमज़ान। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग,
चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम, प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अवां। हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग, तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 3888 986 या 0317 3888 987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय लासीफा ब्रेड। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym, Wonderful swimming pool, spacious and comfortable rooms, great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। दीवानाए रसूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ, उनके कदम की धूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ। हुर्मत रसूल पाक की मुझको अजीम जान से, हुर्मत रसूल पाक की मुझको अजीम जान से, हुर्मत रसूल पाक की मुझको अजीम जान से। इतना तो बाउसूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ। मुझको ये नाज है बड़ा, पंजतन के दर का हूँ गदा। मुझको ये नाज है बड़ा, पंजतन के दर का हूँ गदा। मुझको ये नाज है बड़ा, पंजतन के दर का हूँ गदा। मैं नौकरे बतूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ। इतने सितम के बाद भी हजरत बिलाल ने कहा, इतने सितम के बाद भी हजरत बिलाल ने कहा, इतने
सितम के बात भी हजरत बिलाल ने कहा, मैं नौकरे बतूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम रमज़ान में। आपका मेज़बान साहिबज़ादा हाफ़िज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी फ़याज़ हुसैन चिश्ती साहब, सरबराह तहरीक औसाफ़ुल कुरान और औसाफ़ुल कुरान पब्लिक मॉडल स्कूल के आप माशाल्लाह सरबराह हैं। अल्लामा साहब, सवालात तो मैं पूछूँगा, उससे पहले कुछ और सवालात मैं पूछना चाहता हूँ। माशाल्लाह हज़रत तालीम कहाँ से हासिल किया आपने? मैंने आगाज़ जो तालीम का किया है वो हमारा एक इलाका है मुज़फ़्फ़रगढ़ में, शेरावाला। अच्छा ठीक। तो वहाँ से मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया, कुरान पाक वहाँ से नाज़रा पढ़ा और 5 तक तालीम हासिल की। फिर उसके बाद मैं कोट अद्दू चला गया। कोट अद्दू शहर ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की एक तहसील है, ठीक। वहाँ पर मदरसा है जामिया तालीमुल कुरान। वहाँ मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। तकरीबन 3 साल के अरसे में कुरान पाक हिफ्ज़ किया माशाअल्लाह। उसके बाद वहीं उसी मदरसे में पहले साल मैंने तरावी अपने उस्ताद के आगे खड़े होकर सुनाई। माशाअल्लाह, बहुत एजाज़ की बात है, बहुत एजाज़ की। फिर उसके बाद मैं जामिया अनवारुल उलूम मुल्तान के अंदर कारी मोहम्मद उमर सईदी साहब के पास तजवीद व क़िरात पढ़ी, जो गज़ाली अज़मा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब का मदरसा है जामिया अनवारुल उलूम मुल्तान शरीफ में, और वहीं से दरस निज़ामी का आगाज़ किया। 3 साल तक दरस निज़ामी भी वहाँ से पढ़ी। फिर उसके बाद मैं मीरपुर ख़ास में आ गया था, और मीरपुर ख़ास में बकिया तालीम स्कूल की जो तालीम है उसको स्टार्ट किया। 8 क्लास का पेपर दिए, फिर उसके बाद 9th 10th, फिर इंटर, फिर उसके बाद BA तक यहाँ मीरपुर ख़ास से मैंने मॉडल कॉलेज से किया। फिर मैं लाहौर चला गया। लाहौर के अंदर मैंने एक जामिया मुइनुल इस्लाम है, वहाँ पर दरस निज़ामी की तालीम का आगाज़ किया। फिर उसके बाद जामिया हनफिया गौसिया शेराकोट में है, वहाँ से तकमील की दरस निज़ामी की, दौरा हदीस शरीफ कंप्लीट किया। और उसके साथ ही मिनहाजुल कुरान में काम करता रहा। मिनहाजुल कुरान की तहरीक का भी काम किया, और मिनहाजुल कुरान के अंदर मैंने 3 कोर्सेज़ किए। आइम्मा खुतबा कोर्स किया, इसके अलावा एक इरफानुल कुरान कोर्स किया, तफ़हीम दीन कोर्स किया। मिनहाजुल कुरान से भी रिलेटेड रहा और इधर से भी। अल्लाह ताला का करम है कि मैंने दीनी तालीम भी हासिल की, दुनियावी तालीम भी हासिल की। BA तक दुनियावी तालीम हासिल की है। दीनी तालीम में कुरान पाक हिफ्ज़ भी किया, कुरान पाक की तजवीद भी पढ़ी और दरस निज़ामी की। इसके अलावा छोटे मोटे कोर्सेज़ काफ़ी हैं जिनकी तफसील अभी बताना शायद। जी। अच्छा अल्लामा साहब, मैं एक सवाल होता, मुर्शिद पाक आपके कौन है? माशाल्लाह चिश्ती हैं, तो मुर्शिद पाक भी फिर बताएं। बिल्कुल। मेरे पीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, पीर जगी शरीफ, ये ज़िला लिया में है। अच्छा। एक खानकाह है पीर जगी शरीफ। पीर जगी शरीफ में पीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सिलसिला चिश्तिया के बुज़ुर्ग हैं। सही। और इनके जो दादा थे वो हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कोट मिठन वाले। सुभान अल्लाह। मैं मुठड़ी किथा जान बलब सोना खुश भी अवसें विच मुल्क अरब। बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे, अल्लाह के वली कामिल थे, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कोट मिठन वाले। तो हमारा जो सिलसिला है वो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कोट मिठन वाला। माशाल्लाह। अल्लामा साहब अब सवाल ले लेते हैं। अल्लामा साहब, ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि एतिकाफ़ की शराइत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ़ की शराइत ये हैं, मर्द के लिए मस्जिद शर्त है। सही है।
मर्द मस्जिद के अंदर ही इतिकाफ़ करे। और औरत के लिए शराइत ये हैं, औरत मस्जिद बैत उसे कहते हैं जो घर के अंदर जगह मुकर्रर की है, उस जगह के अंदर इतिकाफ़ करना है। मिसाल के तौर पर घर के ज़्यादा कमरे हैं तो फिर एक कमरा अपने लिए मखसूस कर ले, बस उसी कमरे के अंदर मुसल्ला बिछा लें, वहीं पर रहना है, वहीं पर उठना है, वहीं पर बैठना है, वहीं पर खाना है, वहीं पर पीना है। अगर कमरे कम हैं तो फिर कमरे के अंदर पर्दा लगा लें और उस के अंदर मुसल्ला भी बिछाएंगी, नमाज भी वहीं पर पढ़ेंगी, सोएंगी भी वहीं, और कुरान पाक की तिलावत और विर्द वज़ाइफ जो हैं वो भी वहीं पर करेंगी। औरत का बिला वजह उस पर्दे की जगह से बाहर निकलना मना है। सही। उसने अगर बाहर निकलना है तो सिर्फ़ वज़ू के लिए निकलना है, इसके अलावा वहीं पर उसका खाना भी वहीं पर होगा, पीना भी वहीं पर होगा। और आजकल अमूमन ज़्यादातर मोबाइल का भी इस्तेमाल है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ख़्वाह वो मर्द हो ख़्वाह वो औरत हो, तो इससे बचना चाहिए। सही। हाँ, अगर कोई उलमा की तकरीरें हैं, कोई नात ख़ानी वग़ैरह है, उनको या किसी का कोई ऐसा मौजू है जो इबादत से रिलेटेड है, वो चीज़ें तो अगर देख ना चाहें, सुनना चाहें, बंदा थक गया है तो कोई हर्ज नहीं है, कबाहत नहीं। अच्छा अल्लामा साहब, एक तरतीब और भी पूछना चाहूँगा कि लॉकडाउन की सूरत हाल में तो फिर है, तो फिर मस्जिद कैसे, क्या हमारे उलमा किराम ने क्या जैसे इसमें, क्योंकि उसमें तो गलबन मेरे ख्याल से मना किया गया है नकाती एजेंडे जो हैं उसके अंदर, उस हवाले। हाँ, इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर वबा है, जो बीमारी है, और ये कुदरती बीमारी है, ताउन की बीमारी भी आई थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तदाबीर बयान की है। इसके अलावा भी अब क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, इसके अंदर डॉक्टर हजरात ने, बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वाकई ये बीमारी है। अच्छा, जब बीमारी हो तो उस बीमारी से एहतियात करना, बचना, जान को बचाना ज़रूरी है। हमारा दीन हमेशा हमें यही सिखाता है। ठीक है। यहाँ तक कि अगर आपकी जान सलामत है तो आप इबादत कर सकते हैं, अगर आपकी जान ही सलामत नहीं है तो आप इबादत कैसे करेंगे? तो अब एहतियाती तदाबीर के साथ हमारे उलमाए किराम ने, मुफ्तियान किराम ने हुकूमत के साथ जो डायलॉग किया है, उसके अंदर बातचीत हुई है। तो जैसा कि आपको पता है कि मसाजिद के अंदर नमाज पढ़ना, सफ़ बंदी के अंदर इतना फ़ासला रखना, ये मना है। लेकिन उलमाए किराम ने फरमाया है कि मसाजिद को वीरानी से बचाया जाए, तो इसलिए उलमाए किराम ने इजाज़त दी है। अगर 1-1.5 फुट का फ़ासला होता है, फिर दूसरा नमाजी होता है, तो इस सूरत में भी नमाज जायज़ है, क्योंकि हमारे पास फ़िक़्ह के अंदर कुरान, हदीस और क़यास और इज्तिहाद है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्फ़े का मिलते हैं, वक्फ़े के बाद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ
ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन पंजन ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स दिलकश एलिवेशन कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स स्टैंड बाय जनरेटर कवर्ड पार्किंग चिल्ड्रन प्ले एरिया जिम्नेजियम प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फोन नंबर 0317 3888 986 या 0317 3888 987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by लासीफा ब्रेड। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने दे।
तमाशा नहीं होने देते, जिसकी तौकीद बनाने का ख्याल आए उसे, जिसकी तौकीद जिसकी तौकीद बनाने का ख्याल आए उसे, उसको नौकर दर ज़हरा का बना देते हैं, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम रमज़ान में मेज़बान साहिब रदा हाफ़िज़ मोहम्मद नक्शबंदी के हमरा आप अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना असर की नमाज़ के बाद देखते हैं। यकीनन आपके घर में भी दस्तरखान की तैयारियाँ हो चुकी होंगी या हो रही होंगी, किचन में आपके घर की ख़वातीन भी होंगी और हमारे भाई जो है वो यकीनन ट्रांसमिशन देख रहे होंगे। अल्लामा फ़याज़ुल हसन चिश्ती साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लामा साहब जो बात हमारी चल रही थी उसको कंटिन्यू करें जनाब। जी बिस्मिल्लाह। हम बात कर रहे थे कि एहतियाती तदाबीर इतिकाफ़ के अंदर और नमाज के अंदर जिस तरीके से हुकूमत के साथ हमारे जो मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे की पासदारी करते हुए जो उलमाए किराम ने हमें बताया है उसके मुताबिक ही इतिकाफ़ करना होगा। नमाज जैसे एहतियाती तदाबीर के साथ हो रही हैं, मैं बता रहा था कि फ़ासला रखना ये एक क़ियास में आता है। ठीक है। उलमाए किराम ने कहा है कि हमें मस्जिद को वीरान नहीं करना, मसाजिद को आबाद करना है। और फिर उसके बाद तरावी का जो मामला है, तरावी के मामलात भी इसी तरह चल रहे हैं। हुकूमत वक्त ने इजाज़त तो दी है, लेकिन अगर उसमें जैसा कि ये वायरस फैलता है, ये बीमारी अगर आगे बढ़ती है तो हुकूमत ने ये भी कहा है कि तरावी में भी हम वो नज़रसानी कर सकते हैं। और इसी तरीके से इतिकाफ़ का जो मामला है, फ़िल वक्त तो इजाज़त है इतिकाफ़ की, लेकिन अगर हुकूमत वक्त ने इतिकाफ़ की इजाज़त न दी, क्योंकि इतिकाफ़ है सुन्नत किफ़ाया। अच्छा, सुन्नत किफ़ाया वो होती है अगर एक आदमी कर ले बाकियों की तरफ से गुनाह उठ जाता है। ठीक। हाँ, ये ज़रूर हुकूमत वक्त से मैं कहूँगा कि अगर ज़्यादा लोगों का जम घटा है वहाँ पर मना करें, 2 से 3 अफराद को इतिकाफ़ करने की ज़रूर इजाज़त दें। वो वक्फ़े में मसाजिद के अंदर वो बैठ सकते हैं और उनका इतिकाफ़ एहतियाती तदाबीर के मुताबिक होना चाहिए। बिल्कुल इतिकाफ़ को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिकाफ़ सुन्नत किफ़ाया है, तो सुन्नत किफ़ाया जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हमेशा जारी रखा। जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप हैदराबाद न्यूज़ कर में रमज़ान ट्रांसमिशन 23 रमज़ान को अल्हम्दुलिल्लाह आज आप तशरीफ़ लाएँ। अल्लामा साहब उम्मत के नाम कोई मैसेज? हाँ, मैसेज मेरा ये है कि हमें जहाँ पर इबादत करनी है, रमज़ानुल मुबारक का ये बड़ा बाबरकत महीना है, इसके अंदर रोज़े रखने हैं, नमाज़ पढ़नी है, तरावी अगर इजाज़त मिले तो आप मसाजिद के अंदर पढ़ें, इजाज़त ना मिले तो घर के अंदर ज़रूर इस तरावी को जारी रखिएगा। कुरान पाक की तिलावत कीजिएगा, कुरान पाक कसरत से पढ़िएगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश है। इस आज़माइश का मुकाबला हमें अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करने से ही करना है। बिल्कुल। जितना दुआ करेंगे, तौबा करेंगे, गिरियाज़ारी करेंगे,
اگر اجتماعی طور پر نہیں تو انفرادی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہماری جان چھڑا دے۔ اللہم آمین۔ علامہ صاحب بس میں گزارش کروں گا المختصر اور جامع دعا فرما دیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ اللہم آمین۔ یا الہ العالمین ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اللہم آمین۔ اس کے اندر جو کچھ سکھایا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا اللہم فرما، آمین۔ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا اللہم فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین جن دوستوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، حیدرآباد نیوز کے دوستوں نے، یا الہ العالمین ان کے تمام معاملات کو بہتر فرما۔ اللہم آمین۔ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب اللہم فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین ہم سب کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ آمین۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی صلی اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ناظرین انشاءاللہ ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی کرم رمضان ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو بہت ساری دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ کریم آپ کا ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو، اور افطار آپ بھی کیجیے، ہم بھی چلتے ہیں۔ آج 23 رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔